discussed that there are four components of decision table: condition stub, condition entries, action stub, action entries. Condition stub provides us the possible number of condition entries provides us possible number of rules. Action stub will contain possible number of action, and action entries will contain execution of action against a particular rule. Now, we have also discussed how we are able to define the rules. I have quoted the different example, mean for two condition, for three condition, for four condition, and then I have defined a simple way in order to define the rules, possible number of rules. Of course, the most difficult thing was to recognize how many rules will be there for the possible combination of condition, and we have discussed that with more ease that this with this methodology we shall be able to understand how we are able to define or convert the conditions into rules. Now, in decision table, I have quoted you earlier that don't think in terms of negation. Of course, the entries of rules are yes or no. For example, if I'm asking class attended, that may be a condition, or class not attended, that may be another condition. But in decision table, we shall not consider negation. If class ended, we have included yes mean class attended, no mean class not attended. So it means in terms of condition, we shall not think negation of conditions. These negation will be provided us by rules. So for that, mean if you will recognize the rules wrongly, then of course all the things will become wrong. Now today we need to understand how we shall be able to recognize the condition and action for a given scenario. एग्जाम्पल वन नजर आ रही है सबको? यस सर. ओके, यहाँ पर है जी स्टूडेंट्स who have passed both the coursework and exam, who have passed the coursework and exam. So it means what should we consider? This is something, and then exam for a diploma course are allowed to graduate. This is again something. They are also issued their diploma scrolls provided they have completed payment of all fees. Student who have paid their coursework only, who have passed their coursework only, must attend further exam coaching before sitting for the next exam. Those who have passed their exam but not their course work are required to attend a semester of remedial classes. Any student who has not paid his or her fees is issued a warning letter. I mean, this is a scenario. In this scenario, our objective is to identify the conditions and actions. To identify conditions and actions. So for that cause, of course, I have quoted you earlier that condition will always considered with reference to some if statement. Like you can see, students who have passed both the coursework and exam for a diploma course are allowed to graduate. मीन ऐसे स्टूडेंट जिनका कोर्स वर्क भी कंप्लीट है और एग्जाम भी पास्ड है, वो ग्रेजुएट हो गए. They are also issued their diploma scrolls provided they have completed payment of all fees. यहां पर क्या चीज है? Payment of all fees या simple fees. Okay, so it means this is
another, you can say, condition. Now, in this scenario, if you are able to understand the scenario, then you will be able to design the decision table. If you are not able to understand the scenario, you are no more able to understand the to recognize the conditions and action. This scenario defines that if a student has completed both coursework and exam for a diploma course, he or she will be graduate. They are also issued their diploma scrolls provided they have completed payment of all fees. मतलब ग्रेजुएट हैं, मिलेगा जब उन्होंने फीस भी पे कर दी होगी. एग्जाम पास है, कोर्स वर्क पास है, तो वो ग्रेजुएट हो गए. डिप्लोमा कब मिलना है? जब फीस भी पे की होगी. Then it defines students who have passed their coursework only. ऐसे स्टूडेंट जिनका कोर्स वर्क पास है, इसका मतलब क्या है? एग्जाम फेल है. कोर्स वर्क पास है, एग्जाम फेल है, क्या करेगा? मस्ट अटेंड फर्दर एग्जाम कोचिंग बिफोर सिटिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम. ये आपके रिपीट केस वाला हाल है कि वो बेसिकली तमाम की तमाम एग्जाम कोचिंग लेगा नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होने के लिए. ओके, दोज हु हैव पास देयर एग्जाम, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम पास है लेकिन कोर्स वर्क फेल है. एग्जाम पास है, कोर्स वर्क फेल है, तो वो क्या करेगा? वो सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो री अटेंड करेगा. अटेंड अ सेमेस्टर ऑफ रेमेडियल क्लासेस. Any student who has not paid or his fees is issued a warning letter. अब यहां से हमने कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना है. पहली कंडीशन में अंडरस्टैंड करता हूं कोर्स वर्क पास्ट या कंप्लीटेड. कोर्स वर्क पास्ट, जब यस होगा तो पास्ट है, जब नो होगा तो नॉट पास्ट है. एग्जाम पास्ट, दूसरी कंडीशन. तीसरी कंडीशन फी पेड, जब वाई होगा तो यस, नो होगा तो नॉट पेड. ये तो होगी हमारे पास तीन कंडीशन. अब एक्शन देखते हैं. सबसे पहला एक्शन क्या है? ग्रेजुएट. इनकी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं कह रहा हूं पहला तो ये चौथा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको पहले पे लिखें. सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट. हाँ, ग्रेजुएट एक एक्शन है, ठीक होगी बात. ग्रेजुएट एक एक्शन. इशूड डिप्लोमा स्क्रोल, ये एक और एक्शन है. फिर उसके बाद अटेंड फर्दर एग्जाम कोचिंग, ये एक और कंडीशन है. फिर उसके बाद है अटेंड अ सेमेस्टर ऑफ रेमेडियल क्लासेस, ये एक और कंडीशन एक्शन है. सॉरी, ये एक्शन है सारे. और इशू अ वार्निंग लेटर, ये एक और एक्शन है. यहां पर जो मैंने बोल्ड किया वो कंडीशंस हैं और जो अंडरलाइन किया वो एक्शंस हैं. इस सिनेरियो में हमने कंडीशंस को भी अंडरस्टैंड कर लिया, एक्शंस को भी अंडरस्टैंड कर लिया. अब देखते हैं उसको राइट कैसे करना है. लेट्स सी. मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं. ये जी, हाउ टू बिगिन. टेक द फॉलोइंग सिस्टमैटिक अप्रोच, लिस्ट डाउन ऑल द कंडीशंस. कंडीशंस को हमने लिस्ट करना है. कंडीशन 1 क्या है? पास्ट कोर्स वर्क. दूसरी कंडीशन क्या है? पास्ट एग्जाम. तीसरी कंडीशन क्या है? पेड ऑल फीस. तीन कंडीशंस यही मैंने बताई थी. एक्शंस कौन से हैं? इशू ग्रेजुएट स्टेटस, इशू डिप्लोमा स्क्रोल्स, अटेंड रेमेडियल क्लासेस, इशू वार्निंग लेटर. हाँ जी, कोई मिस तो नहीं है? चार कंडीशंस बन रही हैं, चार एक्शंस बन रहे हैं, एक एक्शन इसमें मिस है. व्हाट इज एग्जाम कोचिंग. अटेंड एग्जाम कोचिंग, वो हमारे पास एक्शन 5 होगा. इट मींस 3 कंडीशंस 5 एक्शन. ये कभी भी सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि 3 कंडीशन हो तो 5 एक्शन होंगे. ये डिपेंड करेगा सिनेरियो पर. तो
अब 3 कंडीशन के अगेंस्ट हमारे पास क्या बनता है जनाब? 8 रूल्स। कितने रूल्स हैं? 8। ये जरा चेक कर लें, ये रूल 1, रूल 2, रूल 3 एंड सो ऑन, सारे रूल्स हैं। पास्ड कोर्स वर्क पहली कंडीशन, पास्ड एग्जाम दूसरी कंडीशन, पेड ऑल फीस तीसरी कंडीशन, इशू ग्रेजुएट स्टेटस एक्शन, इशू डिप्लोमा स्क्रॉल एक्शन, अटेंड एग्जाम कोचिंग एक्शन, अटेंड सेमेस्टर ऑफ रेमेडियल क्लासेस एक्शन, इशू वार्निंग लेटर एक्शन। अब ये रूल, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, मतलब कंडीशन स्टब, एक्शन स्टब और कंडीशन एंट्रीज, ये 3 चीजें क्लियर हो गई। अब रह गया 4th पोर्शन, दैट इज एक्शन एंट्रीज। इन तीनों पोर्शन में कोई प्रॉब्लम हो, यू मे रेज क्वेश्चन नाउ। नो सर। नो, दैट्स फाइन। अब हम लोग जरा देखते हैं कि हाउ वी आर एबल टू एग्जीक्यूट द एक्शंस। जस्ट कंसीडर, रूल्स को हमने वर्टिकली रीड करना है, रूल को हमने वर्टिकली रीड करना है। एक्चुअली रूल इज द इंटीग्रेशन ऑफ कंडीशंस। कंडीशंस को अगर हम इंटीग्रेट करें तो वो क्या बनाता है? रूल। अच्छा जी, ये क्या कहता है? कोर्स वर्क पास्ट, यस कोर्स वर्क पास्ट है स्टूडेंट का। एग्जाम पास्ट, यस एग्जाम भी पास्ट है। पेड ऑल फीस, यस। अब जरा अंडरस्टैंड करो कि अगर एक स्टूडेंट जिसने फीस भी पे की हुई है, जिसका कोर्स वर्क भी पास्ट है, एग्जाम भी पास्ट है, तो अगर कोर्स वर्क और एग्जाम दोनों पास है तो वो क्या है? ग्रेजुएट। तो इशू ग्रेजुएट स्टेटस ये एग्जीक्यूट हो गया। जिस एक्शन को एग्जीक्यूट करना है उस पर हमने ये क्रॉस लगा देना है, और जिस एक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना उस पर हमने हाइफन लगाना है। क्रॉस का मतलब दैट एक्शन विल बी परफॉर्म्ड। लेकिन इस रूल के अगेंस्ट एक एक्शन तो ये है ग्रेजुएट स्टेटस देना, क्योंकि फीस भी पे की हुई है तो डिप्लोमा स्क्रॉल भी हैंड ओवर करना। सो इस रूल के अगेंस्ट ये 2 एक्शन परफॉर्म होंगे। ठीक होगी बात भाई? अब उसके बाद सेकंड रूल चेक करते हैं। सेकंड रूल क्या है? कोर्स वर्क पास्ट, यस। एग्जाम पास्ट, यस। पेड ऑल फीस, नो। दोनों चीजें पास हैं तो ग्रेजुएट स्टेटस तो मिल जाना है, ये हो गया। क्या डिप्लोमा मिलना है? नहीं। क्या एग्जाम कोचिंग लेगा वो? नहीं। क्या रेमेडियल क्लासेस अटेंड करेगा? नहीं। हाँ, वार्निंग लेटर इशू करना है क्योंकि फीस पे नहीं की। एनी स्टूडेंट who has not paid his or her fees is issued a warning letter. रूल 3 चेक करें। कोर्स वर्क पास्ट, यस कोर्स वर्क पास्ट है। एग्जाम पास्ट, नो एग्जाम फेल हो गया। पेड ऑल फीस, यस। अगर फीस पे की हुई है तो वार्निंग लेटर इशू नहीं करना। दोनों में से एक चीज भी नो है तो ग्रेजुएट स्टेटस नहीं देना, ना डिप्लोमा देना है। जब तक कोर्स वर्क और एग्जाम दोनों पास नहीं होते तो हमने ग्रेजुएट स्टेटस भी नहीं देना। तो हमने जाहिर पता है यहां पर ग्रेजुएट स्टेटस भी नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है। अब वो एग्जाम उसका फेल है। अगर एग्जाम फेल है तो उसने क्या करना है? क्या रेमेडियल क्लासेस लेनी है? नहीं, सिर्फ एग्जाम कोचिंग लेनी है। तो ये एग्जाम कोचिंग वाले एक्शन को हमने क्लिक कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास बेसिकली रूल 3 के रेलेवेंट एग्जीक्यूशन थी। फिर उसके बाद हमारे पास है जी रूल 4। कोर्स वर्क पास्ट, यस। एग्जाम पास्ट, नो। पेड ऑल फीस, नो। ठीक होगी बात? फीस भी पे नहीं की, अगर पे नहीं की तो वार्निंग लेटर इशू करो। उसके बाद एग्जाम उसका फेल है तो इसका मतलब ना तो डिप्लोमा देना है ना ग्रेजुएट स्टेटस देना है। एग्जाम फेल है तो इसका मतलब है वो एग्जाम कोचिंग लेगा, उसको सेमेस्टर रेमेडियल क्लासेस लेने की जरूरत नहीं। रूल 5, नो यस यस। कोर्स वर्क पास्ट, नो। कोर्स वर्क फेल हो गया। एग्जाम पास्ट है, फीस पेड है। अगर फीस पेड है तो वार्निंग लेटर इशू नहीं करना। दोनों में से एक भी फेल है तो ना तो ग्रेजुएट स्टेटस देना है ना डिप्लोमा देना है।
क्योंकि कोर्स वर्क फेल है, कंप्लीटेड नहीं है, तो इसने सेमेस्टर की जो रेमेडियल क्लासेस है वो लेनी है, एग्जाम कोचिंग की इसको जरूरत नहीं। रूल 6 चेक करें, नो यस नो, पास्ट कोर्स वर्क नो, पास्ट एग्जाम यस, फीस पेड नो। तो फर्क क्या आएगा प्रीवियस के साथ कि सवाई इशू वार्निंग लेटर की और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक होगी बात जी। फिर रूल 7, पास्ट कोर्स वर्क नो, कोर्स वर्क फेल हो गया, पास्ट एग्जाम नो, एग्जाम भी फेल हो गया, पेड ऑल फीस यस, फीस पे की है, वार्निंग लेटर इशू नहीं करना, दोनों फेल है, ना ग्रेजुएट स्टेटस देना है ना डिप्लोमा देना है, हाँ वो रेमेडियल क्लासेस भी लेगा और एग्जाम कोचिंग भी लेगा, और लास्ट में फीस भी पे नहीं की तो वार्निंग लेटर इशू होगा। तो जो सिनेरियो हमने डिस्कस किया उसके अगेंस्ट डिसीजन टेबल ये बनता है। ठीक होगी बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ जी, कोई मसले मसाइल? नो सर। लेकिन ये चीजें क्लियर कब होंगी, इसके साथ साथ मैंने आपको एक्सरसाइजेस की फाइल भिजवाई थी। ठीक होगी बात? जी सर। अब आपका काम ये है कि जितनी भी उसमें एक्सरसाइजेस हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, वो तमाम एक्सरसाइजेस 1 बाय 1 उनके कंडीशंस रिकॉग्नाइज करो, एक्शन रिकॉग्नाइज करो। ये मैंने लास्ट टाइम कह दिया था आपको, यकीनन कर लिया होगा। सर जी पहले वाले जो है ना वो केस, उसमें वो बहुत कंफ्यूज करने वाला है, अगर आप वो समझा दें तो बाकी तो हमने कर लिया। पीसी सॉफ्ट वाला? जिस सर वो एजुकेशन कोर्स हाँ जी, हाँ जी, पीसी सॉफ्ट इज सेलिंग एजुकेशन, वो एजुकेशन पर्पस के लिए, उसमें उस फिलहाल उसके अलावा कर लें, क्योंकि वो जो पहले वाला है ना वो वाहद केस है जिसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनती हैं, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ निगेशन, अगर हम उसको 100% फॉलो करें तो उसकी कंडीशंस कुछ और बनती हैं, अगर फॉलो ना करें तो कंडीशंस कुछ और बनती हैं। तो वो क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसलिए वो हम करेंगे आखिर में। लेकिन उसके अलावा जो सिनेरियोज हैं, 4 और हैं, कितनी और हैं? तो 3 है। 3 और है सर। 3 और हैं, उन तीनों को आपने डिजाइन करना है। कितना टाइम लगेगा? सर कर चुकी हैं। पहली सर ये मैंने एक्शन एंट्रीज हमने पहले नहीं की थी, आपने रोका था, आपने बोला था बस वो रूल्स मतलब कंडीशन एंट्रीज तक कर दीजिएगा। हाँ, कंडीशन एंट्रीज तक हो गई ना, अब एक्शन एग्जीक्यूशन भी करनी है ना। जी सर हो गया। एक्शन भी कर लिए थे। एक्शन भी परफॉर्म कर लिया हुआ है? जी सर सर। आता जी सर, एक्शन भी कर लिए, कंडीशन भी कर ली। मतलब सारा का सारा काम मुकम्मल कर लिया, फिर मैं वो फर्स्ट वाला ही डिस्कस करूं, जी ठीक है सर। ना? जी चलें। सर जी। चलो ठीक होगी बात, मैं बस वो ओपन करता हूं कंटेंट्स को, तो फिर उसके बाद हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। ये लो भाई, नजर आ रहा है अब पीसी सॉफ्ट इज द कंपनी? नो सर। नो सर। सुनिए, नजर नहीं आ रहा? नो सर, शेयर नहीं हो रहे, नो सिर्फ सर, ये पहले वाले पहले वाला पास्ट ही है कोर्स सर। वर्क वाला। एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए। हाँ जी, अब नजर आ रहा होगा। जी सर। जी सर, अब आया सर। चलो भैया, अब इसको जरा रीड करते हैं। आपने कोशिश करना है कि जब जब इसको रीड मैं करूंगा आपने इसके कंडीशन और एक्शंस को रिकॉग्नाइज करते जाना है। खासा लेंथी केस है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। पीसी सॉफ्ट इज अ कंपनी सेलिंग बिजनेस सॉफ्टवेयर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर मेजर सेलिंग सॉफ्टवेयर इज माइंड योर ओन बिजनेस, माई ऑब, and is selling software at following rate. The selling price is decided on whether the customer is using the software for educational purpose and the quantity they purchase. Look at the situation below and construct a limited entry decision table. अभी तक जो हम decision table की type पढ़ रहे हैं that is called limited entry.
डिसीजन टेबल की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है लिमिटेड एंट्री और दूसरा होता है एक्सटेंडेड एंट्री। हमने अभी तक जो पढ़ा है दैट इज लिमिटेड एंट्री डिसीजन टेबल, एक्सटेंडेड बाद में देखेंगे। तो यहां तक तो उसने ये कहा है कि भाई माईऑप जो सॉफ्टवेयर है ये सेल करना है और उसके सेल की डिपेंडेंसी दो फैक्टर्स पर है, एक कि वो पर्पस क्या है उसका और दूसरा उसकी क्वांटिटी क्या है। अब केसेस आ रहे हैं। इफ द सॉफ्टवेयर इज फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड customer purchase more than 19 copies, selling price for each copy is $120 and the customer will get a discount of 30% but need to pay a delivery charge of $40। सॉफ्टवेयर एजुकेशनल पर्पस के लिए है और कस्टमर को 19 से ज्यादा कॉपीज चाहिए, तो हर कॉपी की प्राइस 120 होगी, डिस्काउंट 30% होगा, जो डिलीवरी चार्जेस है वो $40 होगा। जितने भी ये पैराग्राफ्स हैं उन तमाम में यही कुछ है। इफ द सॉफ्टवेयर इज फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड कस्टमर परचेजेस मोर देन 9, पहले था मोर देन 19, अब है मोर देन 9, selling price is 120, customer will get a discount of 30% but need to pay a delivery charge of $80। तो फर्क क्या पड़ा? $80 का। वहां $40 था, यहां पर $80 है। दोनों में कोई फर्क नहीं सिवाय के कॉस्ट के, मतलब जो भी डिफरेंस है वो एक तो पर्पस के रेलेवेंट है, पर्पस दोनों का सेम है। यहां पर क्वांटिटी डिफरेंट है, यहां पर ग्रेटर देन 19 है, यहां पर ग्रेटर देन 9 है। थर्ड देखें, इफ द सॉफ्टवेयर इज फॉर एजुकेशनल पर्पस and customer purchases less than 10 copies and customer purchases less than 10 copies, selling price for each copy is $120 and the customer will get a discount of 10% but need to pay a delivery charge of $80। यही चीजें नीचे भी 3 पैराग्राफ में है, लेकिन वो नॉट फॉर एजुकेशनल पर्पस है। मोर देन 19 है, मोर देन 9 है, लेस देन 10 है, अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस है और उसकी डिलीवरी चार्जेस और डिस्काउंट है। और फिर वो कहता है आखिर में एल्स चेक द परचेज ऑर्डर अगेन, अगर ये ना हो देन देयर इज सम प्रॉब्लम विद परचेज ऑर्डर। अब हमने कंडीशन को रिकॉग्नाइज करना है, तो पहली कंडीशन बनती है एजुकेशनल पर्पस। जब ये यस होगा तो एजुकेशनल पर्पस, जब ये नो होगा तो नॉट फॉर एजुकेशनल पर्पस। दूसरी कंडीशन बनती है copies more than 19, more than 19 copies, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन more than 9 copies, चौथी कंडीशन less than 10 copies। ठीक होगी बात? हमारे पास कंडीशन है एजुकेशनल पर्पस, more than 19 copies, more than 9 copies, less than 10 copies। और भी कोई चीज बनती है कंडीशंस के रेफरेंस से कि नहीं? आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो नो सर। दैट्स फाइन। अब उसके बाद हम एक्शन को देखते हैं। सेलिंग प्राइस $120, ये $120 एक, डिस्काउंट 30% 2, डिलीवरी चार्जेस $40 तीन एक्शन ये हो गए। ठीक होगी बात? यहां भी 120 है, यहां भी 120 है, यहां भी 120 है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। डिस्काउंट 30% है, यहां भी 30% है, यहां डिस्काउंट 10% है, इसको लिख लेते हैं। यहां डिलीवरी चार्जेस 40 है, यहां पर डिलीवरी चार्जेस 80 है, तो हम डिफरेंट को लिख लेते हैं। क्लियर होगी बात भाई? अब यहां पर प्राइस 120 थी, यहां पर प्राइस है 160, डिफरेंट है, इसको लिख लेते हैं। डिस्काउंट 10% ऑलरेडी आ चुका है, डिलीवरी चार्जेस $40 आ चुका है, 10% 80 ये भी आ चुका है। इसके अलावा कोई ऐसा एक्शन है जो यहां पर हो? ये एक एक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां
चेक परचेज ऑर्डर। ये जनाब, ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये हमारे एक्शंस हैं, जिनको बोल्ड किया ये हमारी कंडीशंस हैं। अब मेरा ख्याल है कि डिसीजन टेबल ड्रा करना तो होगा आसान। प्रॉब्लम कहां पर आएगी? प्रॉब्लम कहां पर आएगी कि फॉर एग्जांपल एजुकेशनल पर्पस हमारी कंडीशन 1 है, मोर देन 19 कॉपीज कंडीशन 2 है, मोर देन 9 कंडीशन 3 है, लेस देन 10 4 है। हम उस केस को डिस्कस करते हैं जब एजुकेशनल पर्पस ट्रू है, यस है, मोर देन 19 भी ट्रू है, मोर देन 9 भी ट्रू है। इज इट पॉसिबल? 10 जो है वो ग्रेटर देन 9 तो हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन 19 तो नहीं हो सकता। जब हमारे पास मोर देन 19 है तो हमने उसको ट्रीट करना है, हमने मोर देन 9 को भी ट्रू है और वो फॉल्स है से लेस देन 10 वाला। तो इस सूरत में जब हमारे पास निगेशन आ जाती है तब हम उस पर्टिकुलर रूल को डिस्कार्ड कर देते हैं, हम उसको सॉल्व नहीं करते, हम उस पर लाइन लगा देते हैं, नहीं तो लिख देते हैं डिस्कार्डेड रूल। ठीक होगी बात? चलो ये तो फिर कुछ बेहतर था, लेकिन अगर हम कहते हैं जी मोर देन 19 इज ट्रू, यस, और लेस देन 10 भी यस, आएगा ना? ये भी अक्रॉस तो आनी है। लेस देन 10 भी ट्रू और ग्रेटर देन 19 भी ट्रू। अभी तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऐसी क्वांटिटी हो जो लेस देन 10 हो बट ग्रेटर देन 19 हो। तो ये निगेशन कहलाती है। रूल्स की आपस में कंडीशन की जो निगेशन है, जब ऐसा हो तो हम उस पर्टिकुलर रूल को डिस्कार्ड कर देते हैं, हम उस रूल को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो विद दिस वे हम इस पर्टिकुलर डिसीजन टेबल को सॉल्व करेंगे। अब होगा क्या? 16 में से जब भी दो कंडीशंस परचेज के लिए लाइक ग्रेटर देन 9 ग्रेटर देन 19 या ग्रेटर देन 9 और लेस देन 10, जब ये ट्रू होंगे दो, उस वक्त हम उस पर्टिकुलर रूल को डिस्कार्ड कर देंगे। यू विल सी के अबाउट 40% रूल्स डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि उसके एलिमेंट हमारे पास, क्योंकि वो रूल ही वैलिड नहीं है। अब वहां डिस्कार्ड करने के लिए क्या लिखा हुआ है? डिस्कार्ड करने के लिए क्या लिखा हुआ है? हमारा ये एक्शन, व्हाट इज दैट? चेक द परचेज ऑर्डर अगेन। हमने वहां डिस्कार्ड अब नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है? इस एक्शन की एग्जीक्यूशन करनी है, चेक परचेज ऑर्डर अगेन। मीन एक ऐसा पर्सन जो ग्रेटर देन 10 और ग्रेटर लेस देन 10 और ग्रेटर देन 19 का ऑर्डर दे रहा है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम विद परचेज ऑर्डर। तो ये हमारा लास्ट एक्शन होगा, या जो भी एक्शन लगाए, ये मेजरली अबाउट 40% रूल्स के अगेंस्ट ये एग्जीक्यूट होगा। समझ में आई बात? सर ये कंडीशन सर नॉट फॉर एजुकेशन पर्पस, ये भी कंडीशन हुई ना सर? कंडीशन है, लेकिन जब यस होगा एजुकेशन पर्पस है, ओके। जब वो नो होगा फॉर एजुकेशन पर्पस, हमने निगेशन के बारे में तो सोचना ही नहीं। ओके सर, ठीक होगी ना बात? क्योंकि रूल्स में हमारे पास यस और नो आ रहा है। जब वहां पर यस है तो एजुकेशनल पर्पस, जब नो आया नॉट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक होगी बात? इस डिसीजन टेबल को आप लोग ट्राई करो, इसमें सर, कोई प्रॉब्लम हो जी? समझ नहीं आ रही है इसकी समझ नहीं आ रही, ड्रा करने की कोशिश की सर। हमने ना वो जो नीचे एल्स वाला दिया हुआ है ना, उसको हमने ऐड ही नहीं किया था, मतलब हाँ। वैसे ही ये ड्रॉ किया था ये वाला जो ग्राफ तो है। ठीक है ना, वो तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो एक्शन है। एक्शन तो सर से वो क्या इफेक्ट आना है? पता नहीं वो डिस्कार्ड कर देना और पता नहीं क्या क्या सर। डिस्कार्ड को छोड़ दो ना। अब अगर ये ना होता हमारे पास एक्शन चेक परचेज ऑर्डर अगेन, तब हम डिस्कार्ड लिख देते या हम लाइन लगा देते कि ये परफॉर्म ही नहीं होना। लेकिन अब तो हमारे पास एक्शन अवेलेबल है, हमने डिस्कार्ड नहीं लिखना, हम उसकी जगह पर कौन सा रूल एग्जीक्यूट करेंगे, कौन सा एक्शन एग्जीक्यूट करेंगे? चेक परचेज ऑर्डर अगेन। देखो ना, लेस देन 10 ट्रू हो गया, ग्रेटर देन 9 ट्रू हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम कहां पर है? परचेज ऑर्डर में। तो हम एक्शन से 7 है ये, हम एक्शन 7 को एग्जीक्यूट कर देंगे।
ग्रेटर देन 19 है और लेस देन 10 दोनों ट्रू हैं, हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ग्रेटर देन 10 और ग्रेटर देन 19 है, फिर यही एग्जीक्यूट होगा। जब भी वो तीनों क्वांटिटीज में से कोई भी दो ट्रू होंगी, चेक परचेज ऑर्डर अगेन एग्जीक्यूट होगा। और जब सारे ही यस होंगे कि एजुकेशन पर्पस के लिए भी ये है, ग्रेटर देन 9 भी है, ग्रेटर देन 19 भी है और ग्रेटर देन लेस देन 10 भी है, इसका क्या मतलब है? एल्स चेक परचेज ऑर्डर अगेन। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग कि मेजॉरिटी ऑफ रूल्स के लिए जो हमारे पास एक्शन एग्जीक्यूट होगा वो होगा चेक द परचेज ऑर्डर अगेन। ठीक होगी बात भाई? अब आप लोगों ने काम ये करना है, ये चारों जो हमारे पास केसेस हैं ये आपने बनाने हैं और बनाकर मुझे सेंड करने हैं। सर हैंड रिटन या एक्सेल? हैंड रिटन चाहिए। ओके सर, एक और क्वेश्चन था। सर जी ऑलरेडी कर लिया हुआ है, अभी बता दे सबमिट कब करना है। तो सेंड कर दें, ये आपके पास 2 दिन है, 2 दिन के अंदर सबमिट कर दें। कहाँ पे? व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे तो बेटा शेयर हो जाएगा ना, आपने मुझे मेल करना है, मेरी ईमेल आईडी आप लोगों के पास है? हाँ जी है। बस वहां पर सेंड करते जाओ। सर क्वेश्चन था कोई? सर जी सर, ये डिलीवरी चार्जेस के बारे में बता दें, ये ना थोड़ा। डिलीवरी चार्जेस सिंपल, डिलीवरी चार्ज इज इक्वल टू $40, डिलीवरी चार्ज इज इक्वल टू $80। अब जो उसके रेलेवेंट कंडीशंस ट्रू होंगी तब एग्जीक्यूट, अगर नहीं होंगी तो इसको खत्म कर दीजिए, मतलब एग्जीक्यूट ना कीजिएगा। नहीं सर, 80% कब देगा और 40% कब देगा, ये थोड़ा। बेटा ये देखो, ये देखा लिखा हुआ है कि 80 भी हो गया। किधर गया भाई? हाँ, सबको नजर आ रहा है? यस सर। दैट्स फाइन। ओके भाई, अब जरा देखते हैं इसको हमने अगर परफॉर्म करना है तो कैसे करना है। ये मेरे पास से रूल 1 है, ठीक है, मैं इसको जरा सेंट्रलाइज कर देता हूँ, ये कर लेता हूँ। ये 16 रूल्स बन गए, ठीक है। रूल 1 हमें कह रहा है जी कि एजुकेशन पर्पस के लिए नहीं है, कॉपीज ग्रेटर देन 19 भी नहीं है, कॉपीज ग्रेटर देन 9 भी नहीं है, कॉपीज लेस देन 10 भी नहीं है। इसका मतलब प्रॉब्लम कहां पर है? चेक परचेज ऑर्डर अगेन, यहां पर ये एग्जीक्यूट होगा, दिस वन। मैं इसको भी सेंट्रलाइज कर देता हूं, ये जितने भी इसके कंटेंट्स होंगे और ये और बोल्ड, ठीक होगी बात भी। हमने ये एक्शन परफॉर्म करना है इस पर्टिकुलर के लिए। अब डिस्काउंट भी कोई नहीं देनी हमने,
तो यही चीजें हर तरफ कॉपी होंगी, ये और ठीक होगी बात भाई। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम था कि वो ये कह रहा है जी कि एजुकेशन पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन क्वांटिटी का ही नहीं पता, तो उसका देयर इज सम प्रॉब्लम विद परचेज ऑर्डर। दूसरा कहता है जी एजुकेशन पर्पस के लिए है, नहीं है, कॉपीज ग्रेटर देन 19 नहीं है, ग्रेटर देन 9 भी नहीं है, लेस देन 10 है। अब जरा वो रीड करें कि लेस देन 10 के लिए, नॉट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए क्या था, वो मैं अब दोबारा शेयर कर रहा हूं, वो देख लीजिएगा, फिर उसको फिल यहां पर करेंगे। हमने ढूंढना क्या है, नॉट फॉर एजुकेशनल पर्पस और लेस देन 10। मैं शेयरिंग दोबारा से कर रहा हूं, ये ले भाई, ये पढ़े, इफ द सॉफ्टवेयर इज नॉट फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड कस्टमर परचेजेस लेस देन 10 कॉपीज। ठीक होगी बात। सेलिंग प्राइस फॉर ईच कॉपी इज $160, ये याद रखना है, $160 एंड नो नीड टू पे अ डिलीवरी चार्ज ऑफ $80। डिस्काउंट कोई नहीं है, डिलीवरी चार्जेस 80 है और $160 उसकी प्राइस है। मैं शेयर कर रहा हूं, 160 और 80। देखो जी 160 प्राइस थी, हमने यहां पर ये लगा दिया जी, और डिलीवरी चार्जेस था 80, ये लगा दिया। बकाया अब चलेगा ये तो यहां पर मैं इनका बॉर्डर भी लगा देता हूं। चलो भाई, समझ आई बात भाई? सर हाँ जी सर, ये हम कह सकते हैं भाई जब भी 19 से ज्यादा कॉपीज लेंगे तो 80% डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे। बेटा, और वो जो लिखा हुआ है सिनेरियो में, उसके मुताबिक, अपनी मर्जी नहीं करनी। ओके, अब जरा फिर चेक कर लो। चलो एक और यहां तक करते हैं, ये 2 आ जाएंगे। रूल 4 तक हम करते हैं, बकाया आप कर लीजिएगा। नो यस नो, एजुकेशन पर्पस के लिए नहीं है, कॉपीज ग्रेटर देन 19 नहीं है, कॉपीज ग्रेटर देन 9 है और लेस देन 10 नहीं है, नॉट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ग्रेटर देन 9। मैं शेयरिंग फिर चेंज कर रहा हूं, नॉट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ये है जी नॉट फॉर एजुकेशनल पर्पस, एंड परचेजेस मोर देन 9 कॉपीज, यही है ना। तो प्राइस क्या है? हाँ जी, प्राइस नजर आ रही है जी सर। 160। डिस्काउंट कितना है? 10%, 10%। डिलीवरी चार्जेस कितने हैं? $80। $80। 160, 10 और 80। दोबारा जाते हैं उस पर। जनाब 160 वाला ये है, यहां पर क्रॉस लगाओ, और 80 वाला ये है, यहां पे क्रॉस लगाओ, और डिस्काउंट कितना था? 10, यहां पर लगाओ, और इसके अलावा जो भी चीज है वो हमारे पास हाइफन है, इसको हम लोग बॉर्डर लगा देते हैं, और यहां पर हम ये लो भाई, अब जो वहां पर लिखा है उसके मुताबिक करना है, अपनी मर्जी नहीं करनी। दैट इज वाई हम जब भी डिसीजन टेबल बनाएंगे वो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो होगा, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। समझ में आई बात? अब जरा 4 को चेक करते हैं। नो, नॉट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ग्रेटर देन 19 नहीं है, कॉपीज ग्रेटर देन 9 है और कॉपीज लेस देन 10 है। क्या कोई ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 9 हो लेकिन लेस देन 10 हो? हाँ भाई, कोई ऐसी चीज हो? नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, चेक परचेज ऑर्डर अगेन, यहां पर हम ये जनाब ड्रा कर देंगे, ये लो। दैट इज वाई मैं कह रहा था कि ये वाला जो है ना एक्शन 40% रूल के अगेंस्ट, शायद इससे भी ज्यादा एग्जीक्यूट होगा। जहां पर देखो ना, यहां पर 2 y आए, लास्ट 2 होगा,
यहाँ पर ये y और ये y आए होगा, यहाँ पर ये आए होगा, यहाँ तीनों y होगा, और यहाँ पर 2y होगा, यहाँ पर भी 2y होगा, यहाँ पर भी 2y होगा, यहाँ पर भी 2 है, यही होगा. सो इट मीन्स जहां जहां पर हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही इसकी, अब ग्रेटर देन 9 और लेस देन 10 की कोई लॉजिक नहीं बनती, तो उसके लिए उन्हें क्या कहा हुआ है, चेक परचेज ऑर्डर अगेन. वो परचेज ऑर्डर चेक करेंगे और उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे. तो ये हमारे पास बिहेवियर था रिगार्डिंग डिसीजन टेबल. ठीक होगी बात. अब डिसीजन टेबल का काम फिलहाल, लिमिटेड एंट्री डिसीजन टेबल का काम हमारा हो गया खत्म. अब नेक्स्ट सेशन में हम लोगों ने एक तो आपके लिए है क्विज. ठीक होगी बात. अब मुझे बता दें कितने दिन आपको चाहिए, ताकि नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो पहले क्विज का होगा और उसके बाद फिर हम लोग स्टडी करेंगे. किस दिन अपीयर होना चाहते हैं क्विज में? बता दें जो दिन आप कहते हैं. शनिवार का. सर संडे कर लें या उसके बाद ही? सर मंडे कर लें. मंडे 7 o'clock. ठीक होगी बात. रात के. मैं आपका अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम मंडे को मॉर्निंग में 10 o'clock कर लें. सर मंडे को 2 क्लासेस होती हैं ऑलरेडी हमारी. कहाँ पर, कितने बजे? सर एक 11:20 से 1:50 तक और दूसरी 1:50 से 4 बजे तक. तो 7 बजे आप फारग है. सर ट्यूसडे कर लो, नो प्रॉब्लम. ट्यूसडे कर लें. ट्यूसडे कर लें. ट्यूसडे मॉर्निंग 11 o'clock. इज इट राइट? जी 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 सर उस दिन हमारा लेक्चर होता है. ट्यूसडे 7 o'clock. बस किसी का लेक्चर नहीं है उस दिन. ठीक है. ठीक है. ठीक होगी बात. चलो ट्यूसडे को बच्चे छोड़ने जाने होते हैं सर. आपका क्विज लेंगे. यहां तक जो हमने पढ़ लिया है दैट विल बी पार्ट ऑफ द एग्जाम. ठीक होगी बात भाई? यस सर. कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो? सर फर्स्ट लेक्चर से यहाँ तक मतलब जितना भी थ्योरी थी और सारा प्रैक्टिकल भी, सब कुछ जो जो पढ़ा है दैट विल बी पार्ट ऑफ द एग्जाम. ये मिड समझ लें कि मिड टर्म से पहले की एक तैयारी है. ठीक है. ज्यादा तो नहीं है ना कंटेंट्स? नहीं सर हो जाएगा. नहीं सर ये तो कोई नहीं है सर. सर और शहजादे लगे. सर ठीक है. हाँ जी सर मेल बता दें एक दफा. मेल बता दो अपना. ईमेल आईडी जी ZSHAN GOREJA zshankureja@uaf.edu.pk. नजर आ रहा है लिखा हुआ? जी सर आ रहा है सर. zshankureja@uaf.edu.pk. ठीक होगी बात भाई? जी. यहाँ पर आपने ईमेल पे मुझे वो जो भी आप लोगों ने डिजाइन करने हैं वो हैंड रिटन होना चाहिए. फिर उसकी पिक्चर्स आप बनाकर मुझे सेंड कर सकते हैं. जरूरत क्या, जब ईमेल करनी है तो ओके पिक्चर चलेगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं चलेगा. वर्ड एक्सेल में बनाया हुआ नहीं चलेगा, इसलिए हैंड रिटन. ठीक होगी बात भाई? जी सर. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी जी. तो इन ट्यूसडे को अब आपका क्विज है और उसके बाद हमारी क्लास होगी. सर सुबह के 7 बजे ना सर? बेटा शाम के 7 बजे, सुबह के 7 बजे नहीं. अच्छा शुक्र है सर, मैं तो परेशान हुआ बैठा था. हाँ जी इंशाल्लाह 7 PM. ओके जी, अल्लाह हाफिज. थैंक यू सर. ओके सर.